Zozo, my beautiful souls, welcome to this special live of the Nisa Show. And I'm so excited to have you here. Type live if you are here with us right now, or type replay if you are watching this amazing conversation later. And if we haven't met yet, I am Nisa, Kamarul Nisa, India's first Hikmat coach and also the founder of the Hikmat Academy. And I help corporate professionals transform into Hikmat leaders and on a mission to direct 1 lakh professionals to achieve inner wisdom, heal emotional wounds, and rise as confident, harmonious leaders in both their personal and professional lives. And today we are exploring mindfulness and emotional healing with Mini Kapoor ji. Let's welcome her and hear her incredible journey. Our guest today is a coach, healer, and founder of the Conscious Seeker Academy. Whether you are feeling emotionally stuck despite external success, struggling to respond instead of react, जो कि हमेशा होता है, हमें पता नहीं होता है कि how to respond और हम react करते हैं, or seeking to heal from the inside out. Today's conversation is going to be incredibly transformative. बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है. Welcome, dear Mini Kapoor ji. Could you please introduce yourself to our beautiful audience, to our beautiful souls जो हमें अभी देख रहे हैं live? Thank you so much, Kamar, for inviting me, and it's my honor to share my journey with you. I am in this journey for last 18 years, transforming people, and I'm blessed to have touched more than 50,000 lives with this healing and coaching practices, Wow. and that gives me so much of a satisfaction and a sense of, you know, giving back. So here I am with you today to share my experiences and learn Zabardast. from you as well. Oh, thank you so much. So, मिनी जी, व्हाट्स द रियल कनेक्शन? असल में ये कनेक्शन होता क्या है फ्रॉम कि आपका एक्सपीरियंस एज अ कोच, एज अ हीलर, जैसा कि आपने बोला कि आपने बहुत सी लाइव्स को टच किया है, बहुतों को हील किया है, कि हाउ डज दिस माइंडफुलनेस सपोर्ट इमोशनल हीलिंग? क्योंकि ये वो ना ये वो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, तो कैसे माइंडफुलनेस सपोर्ट करता है हम लोगों को इमोशनली हील होने में, उस ग्रोथ में हमारी? Uh, Very powerful question, Kamar. Because emotional healing, mindfulness is nothing but awareness, and ट्रू. mindfulness builds emotional intelligence, and it helps people notice what are their emotions within rather than getting consumed by it. जनरली होता क्या है कि हम देख रहे हैं मैं गुस्सा में हूँ, तो मैं गुस्सा में हूँ, मैं कौन हूँ, गुस्सा क्या है, तो कभी कभी समझ नहीं आता. अगर हम उसको अलग कर देते हैं कि मैं अपनी इमोशन से अलग हूँ, तो माइंडफुलनेस वही एक टेक्निक है. तो rather than getting stuck and being consumed within that, we develop that emotional intelligence, and once that awareness is there, choices becomes very easy and इजी. possible, and that becomes, growth and better decisions start taking place. ट्रू. हाँ, तभी वो इजी हो जाता है हमारे लिए करना, जब हम इसका साथ लेते हैं. दिस इज सो प्रोफाउंड. थैंक यू सो मच. यू आर शोइंग आवर ऑडियंस दैट माइंडफुलनेस इज नॉट जस्ट कि कोई रिलैक्सेशन टेक्निक है, इट्स एक्चुअली द फाउंडेशन, राइट? फाउंडेशन फॉर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली कमल. ये क्योंकि बहुत मिथ है जिसको मतलब मैं बस करना चाहूंगी, क्योंकि समझते हैं सब माइंडफुलनेस मीन्स आंखें बंद करके बैठ जाएं. बैठ ये जाए. कोई सेंट्स की प्रैक्टिस नहीं है. इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ वी आर लिविंग. आजकल की जो पेस है लाइफ की, जो प्रोफेशनल्स की, हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स जो बहुत कुछ स्ट्रेस ले रहे हैं, ये बेटर डिसीजंस और उन स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये उसी की टेक्निक है. इट्स नथिंग दैट यू हैव टू जस्ट गेट अवे फ्रॉम एवरीथिंग एंड जस्ट प्रैक्टिस इन हाँ, सॉलिट्यूड. या हमने कोई बोला आपको पहाड़ पे चले जाओ, अब 6 महीने के लिए आपको कोई एब्सोल्युटली काम नहीं नॉट. करना है. सो इट ट्रू. इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड गिविंग ग्रोथ. मोर रिजल्ट. बिल्कुल. उसके साथ साथ हम अपनी लाइफ में कैसे माइंडफुलनेस लाएं छोटी छोटी चीजों में, राइट? एंड आगे मैं चलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि
what is that one simple mindfulness practice की जो आप often recommend to your clients dealing with this emotional stress? कोई एक? हम्म जो मैंने बहुत सालों में अपने साथ भी की है, और मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया, मेरे क्लाइंट्स और मेरे स्टूडेंट्स, जो बहुत ही पावरफुल है कमर, वो है 19 सेकेंड का पॉज। आई अच्छा। ऑलवेज रेकमेंड टेक अ पॉज। जब भी आप बहुत इमोशनल हाई में होते हैं, कुछ भी फील कर रहे हैं, डिसीजन लेना है, आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं, एंगर में हैं, तब क्या होता है, हम जनरली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आई एम एंग्री। हम्म। आई एम एंग तो मैं एंग्री हूं, तो मतलब मैं कौन हूं, मैं अलग है और एंगर अलग है। अपनी इमोशन को अलहदा करके, जैसे मैंने पहले कहा, वही देखना। तो अब 90 सेकेंड का पॉज, कभी भी आपको लगे कि आपकी इमोशन बहुत लो या हाई जा रही है, बैलेंस नहीं है, तो जस्ट टेक अ पॉज फॉर 90 सेकेंड एंड ऑब्जर्व व्हाट यू आर फीलिंग, एंड ट्राई टू नेम द फीलिंग यू आर फीलिंग देयर। Oh, wow. That is so powerful. I am feeling angry. When you are able to connect and tell yourself, your mind, that you are feeling angry, so you will better not take decision at this time because you are running high in emotion. ट्रू सचिन की कितनी एसेसिबल प्रैक्टिस है कि टेक अ 90 मिनट पॉज, जस्ट 90 सेकेंड्स पॉज। 90 सेकेंड, और ये 90 सेकेंड का पॉज में जब मैंने इमोशन को लेबल कर दिया, तो ये हमारे जो पुराने पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि हम जब भी गुस्सा होते हैं तो ऐसा ही करते हैं, जब भी दुखी होते हैं कुछ ऐसा करते हैं, तो ये हमारे कुछ तरह के पैटर्न होते हैं। वेन एवर वी आर फीलिंग रियली लो, आई पीपल कम टू मी, पीपल हैव डिप्रेशन एंड दे स्टार्ट ईटिंग, बिंज ईटिंग। उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या। तो इफ यू जस्ट पॉज एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, you will know, okay, you are feeling sad from inside, that's why you are just filling that gap with some kind of eating, which हाँ is, हाँ। तो इसी तरह से एंगर में आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आप सिर्फ 90 सेकेंड का पॉज, इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ ऐसा चेंज कि आप 1.5 मिनट के बाद अगर कुछ आप डिसीजन ले हाँ। लेंगे, इट्स नॉट। बट द मोमेंट यू लेबल इट, पॉज इट, यू ब्रेक द पैटर्न। जो हमारे हम्म ट्रिगर्स होते हैं और उनका रिस्पॉन्स होता है, उसमें एक काउंटर रिस्पॉन्स दे दिया, रादर देन जस्ट बीइंग अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, वी आर जस्ट ट्रू। काउंटरिंग दैट। so that अमेजिंग। is how we break the pattern. अमेजिंग, जबरदस्त। यू आर गिविंग, जो हमें देखने वाले हैं पीपल, आपको प्योर गोल्ड मिल रहा है कि समथिंग दैट कैन स्टार्ट इमीडिएटली विदाउट कोई स्पेशल ट्रेनिंग आपके लिए नहीं जाना है आपको कि आपको इतना घंटे लगेंगे, आपको इतनी फीस भरनी है। जस्ट 90 सेकेंड्स पॉज, सिर्फ 1.5 मिनट है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं, ताकि आप वो पैटर्न रिपीट ना करो, आप बेटर डिसीजन ले पाओ। राइट। थैंक यू सो मच मिनी जी। एंड आई थिंक this is such a game changer for our audiences that they know they overreact, सबको पता है हम overreact करते हैं, but in the moment उस वक्त they can't stop themselves, कर ही नहीं पाते हैं कि क्योंकि इतनी वो इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं या इतना एंगर जो होता है। सो हाउ कैन माइंडफुलनेस हेल्प पीपल रिस्पॉन्ड टू इमोशंस इंस्टेड ऑफ एकदम से वो जो रिएक्शन, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू देम? साइकोलॉजिकली अगर देखें तो हमेशा कोई भी रिस्पॉन्स के लिए एक स्टिमुलस होना चाहिए। एक स्टिमुलस होगा तो उसका रिस्पॉन्स होगा। अगर मुझे रिस्पॉन्स, अगर मैं अवेयरनेस में हूँ, जो कि मुझे माइंडफुलनेस से मैंने अचीव किया, इफ आई एम इन अवेयरनेस, आई नो माई पैटर्न्स, क्योंकि हमें हमारी अपनी आदतें, हमारी हैबिट्स, हमारे पैटर्न्स मालूम होते हैं, क्यों हम ऐसा करते हैं। हमें, अगर हम बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पे चलते रहेंगे तो हम उसे नहीं पहचान पाते। लेकिन अगर बिल्कुल। मैं उसे अवेयरनेस में लेके चलते हैं, तो मुझे मालूम है एक स्टिमुलस है और एक उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। अब हम्म रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्ड करने की बजाय, गुस्से में तो हमें जोर से, कैसा रिस्पॉन्स होगा, गुस्सा करेंगे, काउंटर हम्म होगा, तो मैं उसका काउंटर स्टिमुलस देंगे। काउंटर स्टिमुलस हम्म में, जैसे मैंने पहले कहा, आप पॉज कर सकते हैं 90 सेकेंड का। और जो इजीएस्ट और हो सकता है कि आप 3 लंबी गहरी सांस लें। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, मैं बॉक्स ब्रीदिंग कहती हूँ, 1 2 3 4 ले, 1 2 3 4 होल्ड करें, 1 2 3 4 छोड़ दें। तो ट्रू। इसी तरह से 3 ब्रेथ अगर ऐसी लेते हैं, तो वहां पे अगेन पैटर्न ब्रेक होता है। आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि हम लोग जब रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको एनालाइज किए बिना रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वही पैटर्न चल रहे हैं।
तो हम्म। हमने, और जैसे ही अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर ऑलरेडी माइंड में प्रोसेस हो रहा होता है, और कभी प्रोसेस हो कभी रहा है। क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आंसर आ रहा होता है। तो हम्म। उसको थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम पॉज दें या ब्रीदिंग लें, तो वो पैटर्न्स को हम ब्रेक करते हैं। इससे हमारे को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। ब्रेन हम्म। फॉग जो इतना सारा हो रहा होगा वो हमारा खत्म होता है। सो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू दोज थिंग्स, वी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। इसी को रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड। का मतलब वो है, इट इज कमिंग विद अवेयरनेस। हम्म। जबरदस्त। और जबरदस्त कि उनको पूरा समझ आ जाता है स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स का, कि कहाँ हमें क्या करना है। जबरदस्त की एब्सोल्युटली। चॉइस उनके पास है कि या तो 3 गहरी सांसें लो, दोनों भी मुझे लगता है इकट्ठे वो कर सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्युटली। हम्म, वो तो क्योंकि पॉज ये ही सब होते ना हैं। प्रैक्टिस से होता है कमल जी। क्योंकि जब हमें नहीं आता होता तो हम ऑटो पायलट में ही चल रहे हैं, क्योंकि हमने हम्म। वही सीखा है, वही वही देखा है, वही देखा करते है। आए हैं। तो अवेयरनेस, माइंडफुलनेस एक अवेयरनेस है कि हम पता करें हम जी कैसे रहे हैं, ट्रू। हो कैसे रहा है। द ट्रू। मोमेंट वी कम इन दैट अवेयरनेस, वी टेक द चार्ज इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स और द सिचुएशंस अराउंड अस। वी स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ, दिस इज मी, आई एम डूइंग दिस। तो वो हाँ। शिफ्ट बहुत ही मेजर शिफ्ट है कि जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ की खुद लेने लगते हैं। जबरदस्त। जबरदस्त सच में, क्योंकि इतनी छोटी सी प्रैक्टिस है और आप सही डिसीजन लोगे, जिस डिसीजन के बारे में बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि गुस्से में कोई भी काम करें तो बाद में हमें उस पर पछताना ही पड़ता है, जैसे कि हमेशा हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, राइट? So thank you so much. And for those who just joined us, thank you so much for joining today. And today we are exploring mindfulness and emotional healing with our amazing guest Mini Kapoor ji, जो कि founder हैं Conscious Seeker Academy की. And we are discovering how mindfulness support emotional healing and helps you people respond instead to react. And if you have any questions about emotional balance or mindfulness practices, drop your questions in the chat box and we will definitely take your questions and our expert will definitely answer these. So coming to the next point, कि सेल्फ अवेयरनेस, जो अभी हम अवेयरनेस की बात कर रहे थे, एंड सेल्फ अवेयरनेस इज सच ए बजवर्ड नाउअडेज, कि सबको अवेयर आजकल हैं भी लोग अवेयर, लेकिन सही वाली माइंडफुल अवेयरनेस क्या होती है, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन फॉर इमोशनल हीलिंग, एंड हाउ डू यू हेल्प क्लाइंट्स एट कॉन्शियस सीकर एकेडमी, जो आप है, डेवलपिंग दिस रियल सेल्फ अवेयरनेस या रियल सेल्फ टॉक कह लीजिए। हम्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमल। बिकॉज मेरे कोचिंग वर्क में सेल्फ अवेयरनेस, इवन हीलिंग वर्क में भी आप देखते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस फाउंडेशन है किसी हम्म। भी चीज। हम अगर अवेयर नहीं है कि हमें प्रॉब्लम क्या है तो हम ठीक क्या करेंगे। अगर तो मुझे ये पता ही नहीं है, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते व्हाट आर द पैटर्न्स, व्हाट इज दैट देयर आई नीड टू चेंज, हाउ एंड व्हाट विल आई चेंज। So हाँ। self-awareness is the most fundamental thing, I would say. And in coaching, we start with self-awareness only. हम हैं क्या, हमारी एक आइडेंटिटी होती है। हम अपने आप को कभी कभी अपने जगह जहाँ रहते हैं, अपने साथ जो रहते हैं, हम उसी को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। तो वो आइडेंटिटी से अलग होकर मैं हूँ क्या, सेल्फ अवेयरनेस है क्या। am I just a woman? I'm maybe playing multiple roles. I'm a wife, I'm a daughter, I'm a sister. But who is, for example, if I have to ask myself, who is Mini Kapoor? हम्म। So I have to be aware, what are my values, what are my what is my core, and that is self awareness. And if I know my core, then I know where I can go. तो फिर कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि हम कभी कभी बहुत ज्यादा कंपटीशन में आ जाते हैं लोगों को देख के, वो ऐसा कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट है, इसलिए भी कि हमारा कोर डिफरेंट है, हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट है। और सेल्फ अवेयरनेस हमें बताता है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या आपने कर देखा सकते होगा हैं। साइकोलॉजी में हम लोग बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी करते हैं, एनालिसिस करते हैं पर्सनालिटीज के, वो इसीलिए कि क्या चीज आपके अंदर मतलब नेचुरली है, जिसको नेचुरली आप है। थोड़ा नरिश कर सकते हैं और पॉलिश कर सकते हो पॉलिश लाइफ कर को। सकते हैं और उसे अचीव कर सकते हैं। दैट गिव्स यू मेनी टाइम्स, यू नो,
good results, हम्म। manifold. जबरदस्त, हाँ बिल्कुल। एंड आपने तो पूरा ही अब खोल के बता दिया। दिस क्लैरिफाइज आई थिंक एवरीथिंग। एंड आई थिंक यू आर शोइंग कि सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट वो नेवल गेजिंग, इट्स अ की दैट अनलॉक्स इमोशनल पैटर्न्स एंड अलोज हीलिंग टू हैपन। क्योंकि हम उसको जगह दे रहे हैं ना कि हाँ, हम ठीक होना चाहते हैं। नहीं तो कई क्लाइंट्स हमने देखे हैं कि जो अपनी बात पे डटे रहते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। कि वो उस अपने अंदर का जो उनका वो कोर जैसे कि है, उस कोर से वो कोर की सुन नहीं रहे हैं। वो बस उन्होंने अपने इर्द गिर्द वो एक बना के रखा हुआ है पैटर्न अपना, बस उनको उसी पे चलना है क्योंकि एक उन्होंने वो वही सब कुछ false देखा है। image. फॉल्स इमेज, उनको उसी पे चलना है, वो काम ही नहीं करना चाहिए। लेकिन बट धीरे धीरे वो फिर सीख जाते हैं कि हाउ टू बी सेल्फ अवेयर एंड हाउ टू रेस्पॉन्ड आवर कोर। थैंक यू सो मच मिनी जी। एंड एट द लास्ट मुझे लगता है कि एक की ऑडियंस को ये बताया जाए कि व्हाट इज दैट वन स्मॉल डेली हैबिट की पीपल कैन स्टार्ट नाउ टुडे, अभी वो शुरू कर पाए कि टू बिकम मोर माइंडफुल इमोशनली, या कोई एक स्मॉल हैबिट हो जाए कि दैट कैन स्टार्ट, दे कैन स्टार्ट, ऑडियंस कैन स्टार्ट, या क्योंकि हमने अपनी लाइफ में स्टार्ट करी हुई है कि जो उनको एक्चुअल शिफ्ट दिखाए, उनको ये जो इमोशनल लैंडस्केप उनको हो रहा है वो शिफ्ट उनको मिले, उनको समझ आए, उनका माइंड उसी टाइम वो जो क्या बोलते हैं हम रीवायर हो जाए। हम्म. ऑलराइट, वेरी यूजफुल क्वेश्चन कमल. आपके क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग हैं. आई थिंक इट इज थैंक गोइंग यू। टू, इट इज कमिंग फ्रॉम द कोर, मुझे लग रहा है. और वो मतलब आपका भी एक पर्सोना मैं देखती हूँ बहुत गिविंग है. तो यू रियली वांट टू गिव टू योर ऑडियंस एवरीथिंग. रियली एक्नॉलेज दिस, दिस इज रियली थैंक गुड. यू। थैंक यू। अ, जैसे मैंने पहले कहा, एक हैबिट पॉज की या डीप ब्रेथ की, विच इज शायद माइंडफुलनेस को लेकर ये सबने सुनी होगी. ये हम्म। प्रैक्टिस आज से, अभी से बहुत छोटी है, कर सकते हैं. इसके साथ मैं एक बोनस टिप और देती हूँ कि आज अगर ये आपने अभी प्रैक्टिस की, आपने दिन भर में हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं. हमारे माइंड में 60,000 to 80,000 थॉट्स रोज पास करते हैं. और उन बिल्कुल। थॉट्स के ऊपर हम कुछ डिसीजंस लेते हैं. बहुत कुछ तो रिपीटेटिव होते हैं, कुछ नए होते हैं जिनके लिए हमें डिसीजंस लेना होता है. छोटे छोटे डिसीजंस कि आज मुझे पहनना क्या है, खाना क्या है, जाना कहाँ है, कैसे जाना है, ये डिसीजन से लेके बड़े डिसीजन, फाइनेंशियल, पर्सनल, इमोशनल लेने होते हैं. लेकिन जब हम रोल्स अपने शिफ्ट करते हैं, एक रोल में और दूसरे रोल में, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ऑफिस में हूँ, ऑफिस से मैं घर जाऊंगी, तो आई कांट कैरी दिस परसोना टू माई ऑफिस, अदरवाइज इट इज गोइंग टू क्रिएट अ डिसबैलेंस. बट हम्म। अगर मेरा मूड घर से खराब होकर मैं काम पर आई और वो मेरे काम को अफेक्ट किया, तो आई हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दिस. मैं किस इमोशन से जा रही हूँ. बट हो सकता है सारा दिन में ये काम ना कर सके, तो एक चीज आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं. जस्ट अ 30 सेकेंड रिफ्लेक्शन फॉर द डे. आज जो आपने सबसे मेजर डिसीजंस लिए, दोज डिसीजंस वर बेस्ड ऑन व्हाट इमोशन वाज इन्फ्लुएंसिंग दैट डिसीजन. तो आप हम्म। अपनी ही इमोशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पता चल रहे हैं. आज मैंने सोचा कि मैं ये खाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही ट्रिवियल, छोटा, लेकिन हम्म। व्हाट वाज द इमोशन बिहाइंड दैट. आज आपने हम्म। एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बहुत फाइनेंशियल बड़ा डिसीजन लिया, तो what it, where was it coming from? It was हम्म। driven by that emotion of happiness that you are creating something, or some kind of an insecurity. You will have इंश्योर। emotion attached to every decision. तो हम्म। जस्ट अपने पैटर्न को चेक करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, जो मेजर डिसीजंस आप लें दिन भर में, रात को सोने से पहले एक बार देखें उस डिसीजन के पीछे कौन सी इमोशन थी. एंड दिस विल गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. वाह वाह, परफेक्ट डेली प्रैक्टिस की कितनी छोटी सी प्रैक्टिस है कि हमें अवेयर रहना है, हमें देखना है आज मैंने दिन में क्या किया। जबरदस्त। ये वाली तो मुझे लगता है कि हाँ, वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी, हम तो एक लंबा प्रोसीजर सोने से पहले करते हैं, लेकिन दिस वन शिफ्ट, ये एक छोटा सा काम अगर आप अभी से शुरू करोगे, अभी इस वक्त साढ़े साढ़े 5 हो रहे हैं, अगर इतने आपको माइंड में रखना है, आज शाम को आपको देखना है मैंने आज दिन में क्या किया, किस इमोशन से किया, जैसे कि मिनी जी ने बताया। थैंक यू सो मच कि कितना जबरदस्त था कि ये माइंडफुलनेस की इट डज नॉट रिक्वायर कि आवर होलिंग योर लाइफ,
Just one small consistent habit can create that profound change, that profound result, जो आप जब आप सुबह उठोगे, क्योंकि आपने वो थॉट क्रिएट कर दिया और पूरी रात वो आपके साथ चलेगा, सुबह आप उसी एनर्जी से उठोगे, अच्छी एनर्जी से। थैंक यू सो मच मिनी जी। I think Most this has welcome. been absolutely transformational, jo bhi today's episode. You have shown our beautiful souls that mindfulness is not just a trendy concept, it's a practical tool for emotional healing, right? Especially for those who look successful outside but feel stuck within. क्योंकि हमेशा ये तो कहीं ना कहीं वो जो बार सा लगता है, वो जो हमें समझ नहीं आती है हो क्या रहा है हम हमारे साथ, और उन लोगों के लिए खास आज का एपिसोड है। यू वर्क एट कॉन्शियस सीकर एकेडमी, जहाँ पे आप हेल्प करते हो लोगों को, आप ब्रिज बने हुए हो दैट, वो जो गैप बिटवीन एक्सटर्नल अचीवमेंट एंड इंटरनल पीस। थैंक यू सो मच एंड माय ब्यूटीफुल Most सोल, welcome. आई होप यू कैन सी दैट emotional healing does not require years of therapy or radical life changes. It starts with mindfulness, it starts with self awareness and choosing to respond instead of react. And Mini ji has given us ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल टूल्स हमने किए, यू कैन स्टार्ट यूजिंग टुडे। एंड बिफोर वी रैप अप मिनी जी, डू यू हैव एनी स्पेशल गाइडेंस या कोई कि आप क्योंकि कोचिंग देते हो, अगर कोई चेंज होना चाहता है, कोई अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है, कोई अपनी लाइफ में शिफ्ट चाहता है, तो आज है कुछ अब हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि हु आर और फॉर दोज हु आर रेडी टू हील इमोशनली एंड अलाइंड फ्रॉम द इनसाइड आउट through this Conscious Seeker Academy? Kamarji, I do a lot of personal coaching, group coachings, and training programs. So anyone who is interested can DM us on the link, and we can get back and get in touch with me or you, whichever ways they feel like. हाँ, जबरदस्त, कि जो भी चाहता है कोचिंग मिनी जी से, क्योंकि आप डीएम करिए, इस वीडियो के नीचे डीएम करिए एंड आवर टीम्स विल डेफिनेटली कांटेक्ट यू विद इन 24 आवर्स। हम आपको हमारी टीम से आपको कॉल आएगी कि आपको किस बारे में हेल्प चाहिए, एंड हम आगे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं विद मिनी जी, आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच मिनी जी फॉर शेयरिंग योर विजडम ऑन माइंडफुलनेस एंड Thank इमोशनल you. हीलिंग Thank you एंड so much. It's my honor. Thank you for calling. जबरदस्त, and your approach of making healing ये जो grounded, relatable and sustainable is actually exactly and actually what our जो ऑडियंस है, हमारे प्रोफेशनल्स हैं, हमारी औरतें जो हैं, जो हमें देख रही हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनको इस इमोशनल ओवरवेल्म से निकलने के लिए। और जब जो उनको इनर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी मिले जब वो आपके साथ जुड़ेंगे या ये एपिसोड भी देखेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ डिस्कस करा हमने, आपने बहुत क्लैरिटी दी। Thank you so much. And for everyone watching, if Mini G's message resonated with you and you are ready to heal from the inside out, do reach out to her at Conscious Seeker Academy, जैसे कि इन्होंने बोला भी कि आप DM करो हमें। And if this session added value to your life, please share it with someone who's emotionally stuck despite this external success. And don't forget to follow our page for more such healing conversations. Drop your key takeaways in the comment section, which one mindfulness practice will you start today? क्योंकि 3-4 हमने शेयर की, जो मिनी जी ने बोला, कौन सी वाली आप शुरू करने वाले हो, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस लाइव। until next time, keep responding instead of reacting, and keep healing from within, and keep being the conscious souls you are, and with lots and lots of love and emotional healing from my side and Miniji. Thank you so much, Miniji. Thank you. Thank you so much. Thank you.